یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ دل کے جذبات کی بھی ہے، جہاں دشمن سامنے ہے لیکن اصل امتحان ہے ضمیر کا۔ پاکستانی اور انڈین جوان، کبھی دشمن، کبھی دوست اور کبھی بھائیوں کی طرح۔ یہ کہانی صرف گولیوں کی آواز نہیں بلکہ قربانیوں کی صدا ہے، آنسو بھی ہیں، مسکراہٹیں بھی، اور وہ سسپنس جو آپ کو ہر لمحہ جکڑے رکھے گا۔ یہ کہانی حوصلے، بہادری اور انسانیت کا جشن بھی ہے۔ یہ ہے وارئرز آف نیشن، اور یاد رکھنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا جناب۔ بندرگاہ پر دوہواں اور بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی دھند میں مدھم ہو رہی تھی اور سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے زمین اور پانی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں۔ ہر قدم پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا، ہر لمحہ موت قریب لگ رہی تھی۔ آریان زخمی ہاتھوں کے ساتھ زمین پر کھڑا تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور عزم دونوں جھلک رہے تھے۔ دانیال اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر زخم کے ساتھ بھی ایک ناقابل شکست عزم تھا۔ آریان نے زخمی ہاتھ سے بندوق پکڑ کر دھیرے سے کہا، دانیال، یہ صرف آغاز ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہم ساتھ ہیں آریان، اور کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ سمندر کی گہرائی سے اچانک آبدوز ابھری، اس کے دھات کے دروازے دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔ بندرگاہ کے پانی کی لہریں ٹکرا کر شور مچا رہی تھیں۔ آقا نمودار ہوا، اس کی موجودگی سے ہوا بھی منجمد لگ رہی تھی، اور اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوفناک عزم تھا۔ آقا نے گہرے لہجے میں کہا، دانیال، آریان، تم نے میرے سپاہیوں کو گرایا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہاری اصل کمزوری کیا ہے۔ آریان نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ دانیال نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، جو بھی ہے، اب ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ آقا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہے شاڈو الائنس کا سربراہ، ایک جنرل جسے دنیا مردہ سمجھتی ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور اب دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے آیا ہوں۔ دھماکے اور گولیوں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ بندرگاہ میدان جنگ بن گئی۔ آریان اور دانیال شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہر گولی، ہر دھماکہ، ہر حرکت میں جان کا خطرہ موجود تھا۔ آریان نے چیختے ہوئے کہا، دانیال، پیچھے دیکھو۔ دانیال نے گولی چلاتے ہوئے جواب دیا، جب تک سانس ہے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ دھواں اور دھماکے کے درمیان دشمن کے سپاہی ہر طرف چھپ گئے، لیکن آریان اور دانیال نے اپنی چالاکی اور عزم سے ہر خطرے کا سامنا کیا۔ آریان نے اپنے زخمی ہاتھ سے ایک سپاہی کو دھکا دیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ دانیال نے گولی چلاتے ہوئے باقی سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ آریان کے دل میں ہر لمحے خوف اور عزم کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے اپنے اندر کہا، اگر ہم ہار گئے تو کم از کم ہماری محبت زندہ رہے گی، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دھواں گھٹتا گیا، لیکن آبدوز کے دروازے دھیرے دھیرے کھلتے رہے۔ آقا کے سب سے وفادار سپاہی بندرگاہ پر اترے اور آریان کو قید کرنے کی کوشش کی۔ آریان نے زخمی ہاتھوں سے لڑتے ہوئے ایک سپاہی کو بھاری دھکا دے کر پانی میں گرایا، لیکن اس کے پیچھے مزید دشمن آ گئے۔ دانیال نے اپنی پوری طاقت لگا کر لڑائی میں داخل ہوا۔ ہر قدم، ہر وار، ہر شاٹ میں جان کی قربانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ آریان کی طرف بڑھتا، دشمنوں کو گراتا اور ہر خطرے سے بچاتا۔ پانی کی لہریں زور سے ٹکرا رہی تھیں، دھواں اور بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور سورج کی روشنی دھند کے پار دھیمی سی دکھائی دے رہی تھی۔ آریان نے دانیال کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہمیں ساتھ لڑنا ہوگا، یہ سب ختم کرنے کے لیے۔ دانیال نے اس کے زخمی ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، ہم ساتھ ہیں آریان، کوئی بھی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ آقا کی نظریں ان پر جم گئی تھیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری محبت تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، اور میں اسے تباہ کر دوں گا۔ دھماکوں کی آواز، پانی کی ہلچل اور دشمنوں کی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ آریان اور دانیال نے ہر خطرے کا مقابلہ کیا، شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ بندرگاہ پر لڑائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ دھواں اور بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، پانی کی لہریں زور سے ٹکرا رہی تھیں، اور آبدوز کے دروازے دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔ آریان زخمی حالت میں بھی دشمنوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اور دانیال ہر لمحے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ آریان نے گولیاں چلاتے ہوئے کہا، دانیال، یہ سپاہی ختم نہیں ہو رہے،
दानियाल ने अपने जख्मी हाथ से गोली निकाली और जवाब दिया, हम भी खत्म नहीं होंगे, पीछे हटना नहीं। धमाके और शीशे के टुकड़ों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। दुश्मन की फौज ज्यादा जारे हो चुकी थी, लेकिन आर्यान और दानियाल ने अपनी हिकमत और इज्म से हर खतरे का सामना किया। पानी में गिरने वाले दुश्मन सिपाहियों को देखकर आर्यान ने अपने अंदर सोचा, हम हार सकते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं हार सकती। ये सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ आका एब्दोज के अंदर से अपने कमांडर्स को हदायत दे रहा था, उन्हें जमीन पर रोक दो, उनका रिश्ता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे तबाह करो। आर्यान और दानियाल ने दुश्मनों को शिकस्त देकर आबदौज की तरफ रख किया। आबदौज के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे और एक खौफनाक मंजर सामने आया। आका की मौजूदगी ने माहौल को और भी सनसनीखेज बना दिया। दानियाल ने आर्यान की तरफ देखकर कहा, हम साथ हैं और इस बार हम किसी भी कीमत पर नहीं हारेंगे। आर्यान ने जख्मी हाथ से दानियाल का हाथ थाम लिया और कहा, हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसे हम किसी के हाथ नहीं आने देंगे। पानी, धुआं, धमाके और गोलियों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। दुश्मन की फौज आबदूज के जरिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन आर्यान और दानियाल ने अपनी चालाकी और टीम वर्क से हर खतरे का सामना किया। धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती गई। हर धमाके के बाद आर्यान और दानियाल एक दूसरे की तरफ देखकर हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी नजरें कह रही थीं, हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें जदा नहीं कर सकती। आका ने अपनी फौज के साथ मुकम्मल मुहासरा कर लिया, लेकिन आर्यान और दानियाल ने दुश्मन की चालाकियों को शिकस्त दी और आबदूज के करीब पहुंचकर आका को चीलिंग किया। आर्यान ने बुलंद आवाज में कहा, आका, तुम सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत और इज्म तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। दानियाल ने दुश्मन की गोलियों के दरमियान बढ़ते हुए कहा, हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। ये जंग हमारी नहीं, बल्कि हमारी कौम और मोहब्बत की जंग है। धमाके और शीशे के टूटने की आवाज के दरमियान आर्यान ने अपनी तमाम ताकत लगाकर एक सिपाही को गिरा दिया और दानियाल ने आबदूज के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। पानी के धागे, धवां और धमाके हर तरफ थे, लेकिन वो दोनों हर खतरे से निकलते रहे। धवां और धमाके के दरमियान आर्यान और दानियाल ने आबदूज के करीब पहुंचकर दुश्मनों की पेश कदमी को रोकना शुरू किया। हर कदम के साथ पानी की लहरें टकरा रही थीं, धवां उड़ रहा था और शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखर रहे थे। आर्यान ने अपने जख्मी हाथ के बावजूद एक दुश्मन को धुका दिया। वो पानी में गिर गया और चीखें बुलंद हुईं। दानियाल ने अपने अंदर सोचा, हर दुश्मन जो गिर रहा है वो हमारी मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जीतेंगे। आबदूज के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। आका ने अपनी फौज के साथ मुकम्मल मुहासरा कर रखा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। आका ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जीतोगे नहीं, ये जंग तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश है। दानियाल ने आर्यान की तरफ देखकर कहा, हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें जदा नहीं कर सकती। आर्यान ने उसके हाथ को मजबूती से थामकर जवाब दिया, हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उसे हम किसी के हाथ नहीं आने देंगे। इस लम्हे एक धमाके आबदूज के करीब हुआ। पानी के बड़े बादल उठे और धुआं हर तरफ फैल गया। दुश्मन के सिपाही परेशान हो गए, लेकिन आका ने अपने मास्टर प्लान के तहत नए सिपाही भेज दिए। आर्यान और दानियाल ने अपनी चालाकी से हर खतरे का मुकाबला किया। आर्यान ने जख्मी हालत में एक दुश्मन को अपने कुंधे से गिराकर पानी में धकेल दिया और दानियाल ने दुश्मन की गोलियों को नाकारा बनाया। धुआं और धमाके के दरमियान आर्यान ने अपने अंदर सोचा, हम हार सकते हैं, लेकिन ये जंग सिर्फ हमारी नहीं, हमारी कौम की भी है और हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। दानियाल ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मन के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। पानी के धागे और धमाके हर तरफ थे। वो दोनों एक दूसरे के करीब खड़े हर खतरे को शिकस्त दे रहे थे। अचानक आका ने आबदूज के अंदर से एक खौफनाक हथियार चलाया। पानी में जोरदार धमाका हुआ और बंदरगाह के किनारे पर धुआं और रोशनी के बादल उठे। आर्यान और दानियाल ने अपने पूरे जिस्म से धिका देकर पानी की लहरों को पार किया और दुश्मन के करीब पहुंच गए। आर्यान ने दानियाल की तरफ देखकर कहा, ये आखिरी मरहला है, हम जीतेंगे या हम अपनी मोहब्बत खो देंगे। दानियाल ने जवाब दिया, हम जीतेंगे आर्यान, मोहब्बत हमारी ताकत है
और हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इस लम्हे सूरज की रोशनी धंध के पार टूटकर पानी पर पड़ी। धवां और धमाके के दरमियान उनके चेहरे रोशन हुए। आबदूज के दरवाजे टूट रहे थे और दुश्मन की फौज परेशान हो गई थी। आर्यान और दानियाल ने शाना बशाना लड़ते हुए दुश्मन की फौज को शिकस्त दी। पानी, धवां और धमाके के दरमियान वो दोनों अपनी मोहब्बत और अज़्म के साथ जीत की तरफ बढ़ रहे थे। धवां अभी भी बंदरगाह पर छाया हुआ था और पानी की लहरें जोर से टकरा रही थीं। आर्यान और दानियाल ने दुश्मन की फौज को पीछे धकेल दिया था, लेकिन आबदूज के अंदर खतरात अभी खत्म नहीं हुए थे। आका आबदोज के अंदर अपने मास्टर प्लान के तहत अपनी फौज के साथ तैयार बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यान और दानियाल, तुम्हारे हर वार ने मुझे झंझोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी असल कमजोरी तुम्हारा रिश्ता है और मैं उसे तबाह करने वाला हूं। दानियाल ने आर्यान की तरफ देखकर कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं और यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आर्यान ने जख्मी हाथ से दानियाल का हाथ थाम लिया और कहा, हम किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे, चाहे कितने भी दुश्मन आएं। आबदूज के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे और एक खौफनाक मंजर सामने आया। पानी में जोरदार लहरें उठीं, धावां और धमाके हर तरफ फैल गए। दुश्मन के सिपाही बड़ी तादाद में आगे बढ़ने लगे, लेकिन आर्यान और दानियाल ने अपनी चालाकी और टीम वर्क से हर खतरे का मुकाबला किया। धीरे धीरे आबदूज के अंदरूनी कमरे में एक खुदकार हथियार मुतहर्रिक हो गया। दानियाल ने फौरन सोचा, ये कोई आम हथियार नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है। आर्यान ने कहा, हमें उसे नाकारा बनाना होगा। और फौरन दानियाल ने अपनी पूरी ताकत से हथियार की तरफ बढ़ा, दुश्मनों को पीछे धकेलते हुए। आर्यान ने जख्मी हालत में भी उसकी मदद की। पानी के धागे और धमाके हर तरफ थे। इसी दौरान आका ने अपनी मास्टरमाइंड हिकमत अमली के तहत नए सिपाही भेज दिए। वो दोनों हर खतरे से निकलने के लिए अपनी जहानत और ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। आर्यान ने धीरे से सोचा, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये हमारी मोहब्बत और जिंदगी की जंग है। दानियाल ने दुश्मन के हथियारों को नाकारा किया और आर्यान ने आबदूज के अंदर घिसकर मरकजी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर आका के सामने खड़ा हो गया। आका ने हैरान होकर कहा, तुम कैसे पहुंच गए? ये मुमकिन नहीं। दानियाल ने मुस्कुराकर कहा, हमारी मोहब्बत ही हमें यहां लाई और ये वो ताकत है जो तुम्हारे सबसे बड़े हथियार को शिकस्त देगी। आर्यान ने जख्मी हाथ से आका के मास्टर प्लान को नाकारा किया। धमाके और रोशनी के असर से आबदूज का कंट्रोल तबाह हो गया और पानी के बड़े बादल उठे। धीरे धीरे दुश्मन की फौज पीछे हट गई और आर्यान और दानियाल ने आबदूज के बाहर कदम रखा। पानी की लहरें शोर मचाती थीं, धवां हर तरफ फैला हुआ था और सूरज की रोशनी धंध के पार टूटकर पानी पर पड़ रही थी। आर्यान ने दानियाल की तरफ देखकर कहा, हम जीत गए, लेकिन यह जंग सिर्फ इब्तिदा थी। दानियाल ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम साथ हैं और यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, मोहब्बत। धवां और धमाकों के दरमियान दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हर खतरे के बाद उनका रिश्ता मजबूत तर हो रहा था। बंदरगाह पर धवां अभी भी छाया हुआ था और पानी की लहरें जोर से टकरा रही थीं। आर्यान और दानियाल ने आबदौज को नाकारा कर दिया था, लेकिन दुश्मन की फौज अभी भी पीछे नहीं हटी थी। आका ने अपनी मास्टर प्लान के तहत एक और खतरनाक हथियार मुतहर्रिक कर दिया। ये हथियार बंदरगाह के नीचे छिपी हुई खुदकार तोपें थीं जो हर लम्हा तबाही मचा सकती थीं। दानियाल ने अपनी पूरी ताकत से कहा, आर्यान, हमें फौरन इन तोपों को नाकारा करना होगा, हर लम्हा कीमती है। आर्यान ने जख्मी हाथों के बावजूद गोलियों के बीच दुश्मन को मारा और कहा, हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। धमाके और पानी के बादल हर तरफ थे। दुश्मन के सिपाही बंदरगाह के किनारे से हमला आवर हो रहे थे, लेकिन आर्यान और दानियाल ने अपनी चालाकी और टीम वर्क से हर खतरे को शिकस्त दी। पानी के धागे, धवां और शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। आर्यान ने दानियाल की तरफ देखकर कहा, हमने इतनी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। दानियाल ने जवाब दिया, हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें जदा नहीं कर सकती। आका ने आबदूज के अंदर से बुलंद आवाज में कहा, ये आखिरी चैलेंज है, तुम्हारे रिश्ते को तबाह करके मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा। धीरे धीरे आर्यान और दानियाल ने दुश्मन के मरकजी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर खतरा मौजूद था, हर हरकत में जान का खतरा छिपा हुआ था।
आर्यान ने अपने अंदर सोचा, हम हार नहीं सकते। ये जंग सिर्फ हमारी नहीं, हमारी कौम की भी है, और हम किसी भी कीमत पर हारेंगे नहीं। दानियाल ने दुश्मन की खुदकार तोपों को नाकारा करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। आर्यान ने जख्मी हालत में भी हर दुश्मन को रोकने की कोशिश की। धवां, पानी और धमाके हर तरफ थे। आखिरकार वो दोनों दुश्मन के मरकजी कंट्रोल रूम में पहुंच गए। आका ने अपने मास्टर प्लान के तहत आखिरी हमला किया, लेकिन आर्यान और दानियाल ने अपनी हिकमत और जर्रात से इसे नाकाम बना दिया। बंदरगाह पर सुबह की पहली रोशनी धुंध के दरमियान आ रही थी, लेकिन धवां अभी भी छाया हुआ था। पानी की लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं और बंदरगाह के किनारे छोटे छोटे धमाके अब भी गूंज रहे थे। आर्यान और दानियाल जख्मी हालत में खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर इज़्म और जरात साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे आका शैडो अलायंस का मास्टर माइंड नमोदार हुआ। इसके चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट और आंखों में खौफनाक चमक थी। इसने आर्यान और दानियाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरे सिपाहियों को शिकस्त दी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे कभी नहीं भाएगी, और मैं उसे खत्म कर दूंगा। आर्यान ने जख्मी हाथ से गोली पकड़कर दानियाल की तरफ देखते हुए कहा, हमारी मोहब्बत कोई नहीं तोड़ सकता, और ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दानियाल ने दानत भींच कर कहा, हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें जदा नहीं कर सकती। आका ने आबदूज के अंदर से अपनी आखिरी हरबा मुतहर्रिक कर दिया, एक खुदकार हथियार जो बंदरगाह के हर हिस्से को तबाह कर सकता था। पानी में जोरदार लहरें उठीं, धवां और रोशनी के बादल हर तरफ छा गए। आर्यान और दानियाल ने फौरन हर दुश्मन और हथियार का सामना किया। आर्यान ने जख्मी हालत में दुश्मन की खुदकार तोपों को नाकारा किया, जबकि दानियाल ने आबदूज के कंट्रोल रूम में दाखिल होकर मास्टर प्लान को तबाह किया। पानी के धागे, धवां, धमाके और शीशे के टुकड़े हर तरफ थे। दुश्मन के सिपाही एक एक करके हथियार डालने पर मजबूर हुए। आर्यान ने दानियाल की तरफ देखकर कहा, यह हमारी आखिरी लड़ाई है और हम जीतेंगे। दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी मोहब्बत और अज़्म हमें कभी नहीं हारने देंगे। आका की फौज मुकम्मल शिकस्त खा गई। आबदूज टूट फूट का शिकार हो गई और बंदरगाह पर सुकून छा गया। पानी की लहरें धीरे धीरे कम हो गईं, धवां छुट गया और सूरज की रोशनी पानी पर गिरने लगी। आर्यान ने जख्मी हाथ से दानियाल का हाथ थामकर कहा, हमारी मोहब्बत ने हमें हर खतरे से बचाया और ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। दानियाल ने सर हिलाते हुए कहा, यह मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। आका खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन उसकी धंधली मुस्कुराहट ये जाहिर कर रही थी कि कहीं न कहीं उसकी खतरनाक मौजूदगी अभी भी बाकी है। धवां और धमाकों के दरमियान आर्यान और दानियाल बंदरगाह के किनारे खड़े थे। पानी की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और उनकी नजरें कह रही थीं, हमने हर खतरे का सामना किया और हमारी मोहब्बत ने हमें जीतने दिया। मैं जानता हूं कि इस पार्ट में आपको मजा कम आया होगा, लेकिन जो अगली कहानी है वो जबरदस्त कहानी है। इस कहानी का नाम है किराए का फौजी। जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखना नहीं, बोलना, किराए का फौजी। और हाँ, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली नई कहानी किराए का फौजी के साथ। अल्लाह हाफिज।